إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى والذين آمنوا أشد حبا لله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليهما مما سواها وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله ہر قسم کی بڑائی کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے جس اللہ رب العالمین نے ہم سبھی لوگوں کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا بعدہ صلاۃ و سلام ہو تمام ہی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا اللہم صلی وسلم مبارک علیہ قابل احترام بزرگوں عزیز ساتھیوں نوجوان دوستوں پیارے بچوں اور معزز اور محترم خواتین اسلام اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے قرآن مجید کی مشہور سورہ مبارکہ سے آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا اور اسی کی مناسبت سے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کوشش کی جائے گی کہ آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ العزیز میں آپ کے سامنے حدیث رسول کی روشنی میں 3 باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا اللہ سے آپ میرے لیے دعا کریں اللہ مجھ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور میں آپ سبھی لوگوں کے لیے دعا کروں گا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی جمعہ کا مکمل ثواب نصیب فرمائے اور جو ہماری حاضری ہے جمعہ کی اللہ تعالی اسے قبول فرمائے آمین رب العالمین اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد جو حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے پڑھی ہے میں نے واللہ العظیم اگر میں آپ کے سامنے بات کروں اتنی اہم ترین یہ حدیث ہے اور اتنے سارے پیغامات اس کے اندر موجود ہیں کہ وقت ناکافی ہوگا لیکن مجھے اپنی بات رکھنی انشاءاللہ اور وقت کی میں پابندی کروں گا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جس نے اس حدیث کو سمجھ لیا گویا اس نے پورا اسلام سمجھ لیا ہے
इस्लाम को जानना है, ईमान को जानना है। इस्लाम किसको कहते हैं, ईमान किसको कहते हैं, और इस्लाम में क्या खूबियां हैं, ईमान में क्या खूबियां हैं, अगर आपको जानना है तो आप इस हदीस रसूल को पढ़ें, गौर से पढ़ें, संजीदगी से पढ़ें और फुर्सत से पढ़ें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला समझ में आ जाएगा कि इस्लाम जो अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे करके भेजा है, इसमें क्या क्या खूबियां मौजूद है और क्या क्या अच्छाइयां मौजूद है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, रावी हदीस से अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु, क्या बात की जाए इनके बारे में, और मैंने किस अजीम सहाबी का नाम लिया है। ये वो सहाबी रसूल हैं जो खादिमे रसूल के नाम से जाने जाते हैं, और जिन्होंने 1 साल 2 साल नहीं 10 साल मुसलसल लगातार प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की है। कुर्बान जाए आपकी खिदमत करना 10 साल, हम मुझे माफ फरमाए, मेरे और आपके दुकानों में 2-4 साल में लोग नौकर चाकर बदलते रहते हैं, हमारे अपने घरों में लोग बदलते रहते हैं। 10 साल एक जगह खिदमत करना, ये उसी इंसान से पूछो। उन्होंने 10 साल खिदमत की है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी ने पूछा कि अनस, आपने 10 साल नबी की सोहबत में गुजारा है, आपने अपने नबी को कैसा पाया? दुआ करें हम नबी के उम्मती हैं, अल्लाह हम सबको अपने नबी की तालीमात पर चलने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमा। उन्होंने कहा कि आप हमारे नबी के बारे में पूछते हो, सवाल करते हो, 3 जुमलों में अल्लाह की कसम है उन्होंने अल्लाह के नबी की जिंदगी का खुलासा पेश कर दिया। कहा कान अहसन नास व अजवद नास व अशजा नास। कहा मेरे नबी के बारे में पूछते हो जिनकी मैंने 10 साल खिदमत की है। सबसे पहली बात फरमाई, कान अहसन नास, दुनिया में बहुत सारे लोग आए हैं, क़यामत तक आएंगे, लेकिन हमारे नबी के जैसा कोई नहीं आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कान अहसन नास, हुस्न में आप बेमिसाल, जमाल में आप बेमिसाल, अखलाक में आप बेमिसाल, किरदार में आप बेमिसाल, आपके जैसा आया कौन है? क़यामत तक कोई आ नहीं सकता, सुभान अल्लाह। इसलिए आपने क्या फरमाया, वो इत्तम्मिमा मकारिमल अखलाक, दुनिया के सारे पैगंबर, अंबिया, सुलहा, शोहदा ये अखलाक की तालीम देने के लिए आए थे। हमारे पैगंबर अखलाक के चैप्टर को मुकम्मल करने के लिए आए थे सल्लल्लाहु। काना अहसन अन्नास व अजवद अन्नास, लोगों में सबसे ज्यादा सखी और फैयाज, अल्लाह की राह में खर्च करने वाले। शायर ने कहा खुद ना खाते थे औरों को खिला देते थे। शायर कहता है कि खुद ना खाते थे औरों को खिला देते थे, कितने साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले सल्लल्लाहु। आपसे बड़ा सखी इस रोए जमीन पर कोई नहीं आया है। कोई भी आपके दरवाजे पर आया तो आपके पास था तो आपने दिया, अगर नहीं था तो आपने दूसरों से लेकर के उस आदमी की मदद की है। बात तवील हो जाएगी, मुझे 3 बातें रखनी है। तीसरी बात उन्होंने फरमाई, वो अशजाअन नास, सबसे बड़े ज्यादा बहादुर हिम्मत वाले थे, शुजा वाले थे। आपसे बड़ा बहादुर इस रुए जमीन पर कोई नहीं है, सुभान अल्लाह। जब लड़ाइयां जोरों की होती थी ना, सबसे आगे सीना अगर किसी का होता था, हमारे पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का रहता था सल्लल्लाहु। बुज़दिली आपके अंदर नहीं थी, पीठ दिखा करके भागने वालों में से आप नहीं थे। मैदान जंग में जब लड़ाई जोरों की होती थी ना, सबसे आगे आपका सीना रहता था, और जब लश्कर वापस जब आता था मदीने की जानिब, सबसे पीछे आप रहते थे, ताकि दुश्मन का अगर कोई हमला हो पहले मोहम्मद की पीठ जख्मी हो सल्लल्लाहु। सबसे बड़े बहादुर आप थे। ये कौन बता रहे जानते हैं? जो हदीस मैंने पढ़ी आपके सामने, उस हदीस के रावी है अनस रजी अल्लाह अन्हु। अदब से नाम लेना, सहाबी रसूल है ये, खादिमे रसूल है ये, इनके हम पर बड़े एहसानात हैं। अल्लाह की कसम है, हम मर करके मट्टी में मिल जाएंगे ना, सहाबी रसूल के जो उनका हम पर हक है ना, उसका हक अदा नहीं कर सकते हैं। इतनी उन्होंने खिदमत की है, और उनके वास्ते न जाने कितने हजार हदीसें हम तक पहुंची हैं। क्या नाम है? अनस इब्ने मालिक
रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, वो फरमाते हैं, बात मैं शुरू करूं और वक्त पर खत्म करूं इंशाअल्लाह। वक्त बड़ी तेजी से गुजरता है, खुतबा जब मिंबर पे खड़े होते हैं ना तो वक्त बड़ी तेजी से भागता है। दुआ करे अल्लाह वक्त में बरकत नसीब फरमाए। और ये जुमा का मौका है, आप खतीब की आंखों में आंखें डाल करके देखें। हाँ, ये एक आदत होनी चाहिए कि आप जब कोई भी इस मिंबर रसूल पे खुतबा देने के लिए खड़ा हो तो आप सर झुकाने के बजाय खतीब की आंखों में आंखें डाल करके देखें। तब लगेगा कि आप जुमा में आए हैं, कुछ पैगाम लेने के लिए आए हैं, जुमा का हक अदा होगा इंशाअल्लाह। और एक जुमा में अगर आपने एक मसला समझ लिया, दीन की एक बात अगर आपने जानकारी हासिल कर ली, साल में 52 जुमा आते हैं, आपको दीन के 52 मसाइल का इल्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। बोलो हाँ, ये फिक्र लेकर के आइए, ये सोच लेकर के आइए कि आज के जुमा में कोई भी खतीब आएगा इंशाअल्लाह, खुतबा देगा, एक पैगाम तो मैं जरूर लूंगा इंशाअल्लाह और उस पर अमल भी करूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। जुमा कामयाब होगा, हमारी जिंदगी कामयाब होगी, रहमतें आएंगी आसमान से, बरकतें आएंगी आसमान से, रजा मिलेगी अल्लाह तबारक व तआला की इंशाअल्लाह ताला। फरमाते आप अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, सलासुम मन कुन्ना फी वजदा बिहिन्ना हलावतल ईमान, जिसने अपने अंदर 3 खूबियां, कितनी 3 खूबियां, बहुत बड़ी बात मैं नहीं करूंगा, कोई बहुत बड़ा इजलास आम नहीं है, ये जुमा का मौका है, ये माहौल संजीदा है, ऐसे ही जुमा के माहौल में होना चाहिए। आपने फरमाया जिसने 3 खूबियां, 3 आदात, 3 सिफात, 3 अच्छाइयां जिसने अपने अंदर पैदा कर ली ना, उसे ईमान की हलावत मिलेगी, ईमान की मिठास मिलेगी, ईमान का जायका मिलेगा, ईमान में मजा मिलेगा। और मुझे माफ फरमाए, मिंबरे रसूल से अला वजहिल बसीरा बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं, बहुत सारे लोग हैं जिनको ईमान की हलावत नहीं मिली है, ईमान की मिठास नहीं मिली है, ईमान का जायका नहीं मिला है, ईमान किस चीज का नाम है और ईमान की मिठास क्या है उनको मालूम ही नहीं है। और जिसको अल्लाह की कसम है ईमान की हलावत मिल जाएगी ना, उसके लिए दीन का सारा काम करना आसान हो जाएगा। बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं, मस्जिद के बगल में घर है, हय्या अलस सलाह की आवाज आई, हय्या अलल फलाह की आवाज आई, कद कामतिस सलाह भी सुनाई देता है, लेकिन ऐसे मुसलमानों को कभी तौफीक नहीं है कि अल्लाह के घर को आकर के आबाद करें। ये वो मुसलमान हैं जिन्हें ईमान की हलावत नहीं मिली है, और जिसको ईमान की मिठास, ईमान की हलावत मिल गई, शहरे हरिहर के आखिरी कोने में घर रहेगा, हय्या अलस सलाह की आवाज आएगी, अल्लाह की कसम भागे भागे आएगा और अल्लाह के घर को आबाद करेगा। अल्लाह से आज जुमा में जितने मुसल्ली हैं, ये 2, 4, 10, 500, 1000 कितने भी हो, अल्लाह से भीख मांगो, जिंदगी में कोई चीज मांगने की है अल्लाह से ये मांगो, अल्लाह ईमान की हलावत नसीब फरमाए, आमीन। ये मांगने वाली चीज है, अल्लाह सबको नहीं देता ईमान की हलावत, और जिसको ईमान की मिठास, ईमान की हलावत, ईमान का जायका मिल गया ना, उसके लिए दीन का सारा काम करना आसान हो जाएगा। दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, हर आदमी को एक अपनी अपनी पसंद है, एक एक जायका है, किसी को खाने पीने का शौक है, किसी को बिल्डिंगें बनाने का शौक है, किसी को सैर तफरी का शौक है, किसी को अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का शौक है, हर आदमी को अपना अलग अलग मजा है। ईमान का भी मजा है, अल्लाह की कसम सबको नहीं मिलता है, सबको नहीं मिलता है। अगर ईमान का मजा मिल गया, रमजान में तरावी कितनी लंबी क्यों ना हो जाए, पढ़ने में मजा आता है, सुनने में मजा आता है, कुरान की तिलावत करने में मजा आता है। आज जुमा के दिन है, मुझे माफ फरमाए, मैं आप पर तनकीद करने के लिए या उंगली उठाने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन आज जुमा का दिन है ना, सूरतुल कहफ पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अल्लाह के घर में पहले आए, जुमा के दिन सूरा कहफ की तिलावत करें, अपने घरों में तिलावत करें। कितने मुसलमान हैं जिन्होंने आज सूरतुल कहफ की तिलावत की है? ये वो मुसलमान है ना जो सूरे कहफ की तिलावत, अल्लाह जिनको तौफीक देता है ना, जिनको ईमान की हलावत मिल गई है, वही जुमा के दिन सूरा कहफ की तिलावत करेगा। क्यों जानते हैं? मैं क्या बताऊं आपके सामने, लंबे अरसे के बाद तो मुलाकात है, बहुत सारी बातें जहन में आ रही है, मैं मौजू से हटना नहीं चाहता हूं। प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने क्यों फरमाया है हर जुमा जुमा सूरा कहफ की तिलावत करो? कभी आपने गौर किया है? सूरे कहफ के मज़ामीन आपने
आपने पढ़े, नबी कह सकते थे ना आज जुमा सूरा बकरा पढ़ो, आइंदा जुमा आल इमरान पढ़ो, फिर सूरा निसा पढ़ो, फिर सूरा माहिदा पढ़ो, सूरा नाम पढ़ो, लेकिन नहीं, हमारे आपके नबी ने ये तालीम दी है कि हर जुमा सूरा कहफ की तिलावत करो। करेंगे इंशाअल्लाह। आप मेरे लिए दुआ करें, सफर में हो या हजर में हो, जहां कहीं भी हो, जुमा के दिन सूरा कहफ की तिलावत करें। क्या है सूरह कहफ में मज़ामीन? अल्लाह ने दुनिया के बड़े फितनों का जिक्र किया है, दुनिया के बड़े बादशाहों का जिक्र किया है, मोमिन बादशाहों का जिक्र किया है, काफिर बादशाहों का जिक्र किया है, दुनिया की दौलत का जिक्र किया है, आजमाइशों का जिक्र किया है। सूरह कहफ पढ़ने से आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मुसलमान, जो मोमिन जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत करेगा ना, 8 दिन तक अल्लाह तबारक व तआला ऐसे आदमी को नूर अता फरमाएंगे, नूर अता फरमाएंगे। अल्लाह हिदायत से, अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाएंगे, गुमराही से बचाएंगे, जलालत से बचाएंगे, शिर्क व बिदअत से बचाएंगे, नस्लों की हिफाजत करेंगे, घर में नूर आएगा, घर में रहमतें आएंगे। ये वो मुसलमान है ना जो जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत करेंगे, अल्लाह उन्हें नूर अता फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। करेंगे इंशाअल्लाह। ये जानते हैं जिसको ईमान की हलावत मिलेगी ना, वही जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत करेगा। जुमा में पहले आएगा, इमाम के सामने बैठेगा। आप अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? जो आदमी जुमा के दिन सबसे पहले आए, गुस्ल करे, खुशबू लगाए, सुरमा लगाए, साफ सुथरे कपड़े पहने, इमाम के सामने आए, 2 रकात नमाज पढ़े, इमाम के सामने बैठा रहे, पूरा खुतबा सुने, सुन्नत पढ़ करके घर को जाए, अल्लाह की कसम है अल्लाह ने इसको जहन्नम से आजाद कर दिया। सुभान अल्लाह। देख रहे आप, सबको ये तौफीक नहीं मिलती है। आप अपने अंदर, मैं अपना जायजा लेता हूं, आप मेरे बड़े भाई हैं, हमारे दोस्त और हबाब के हल्का में से है, जायजा लीजिए। 50 साल की उम्र हो गई है, कभी अल्लाह ने तौफीक दी है कि जुमा में पहली सब में आकर के बैठो? जायजा लीजिए अपने आप का, गौर कीजिए अपने आप को। कभी ऐसा मौका आया है कि मैं भी जुमा के दिन पहली सब में इमाम के सामने आकर के बैठा हूं और पूरा खुतबा मैंने गौर से सुना है? चलिए बात में जल्दी में खत्म करूंगा इंशाअल्लाह, वक्त की पाबंदी करूंगा इंशाअल्लाह। फरमाते हैं प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सलातुम मन कुन्ना फीह वजदा बिहिन्ना हलावतल ईमान, जिसने अपने अंदर 3 खूबियां पैदा कर ली ना, उसे ईमान की हलावत मिलेगी, ईमान की मिठास मिलेगी, सारा काम करना उसके लिए आसान हो जाएगा, दुनिया की दौलत को अपने कदमों की ठोकर पर रखेगा, कभी ईमान का सौदा नहीं करेगा इंशाअल्लाह। बोलो। बहुत दुख के साथ अभी 2-4-10 दिन पहले एक खबर जब हमने पढ़ी, एक 60 साल के मुसलमान बुजुर्ग, चेहरे पे अल्लाह का नूर, नबी की सुन्नत, जिनके चेहरे पे दाढ़ी है, 60 साल की उम्र पहुंचने के बाद दुनिया की लालच और दुनिया के माल दौलत की लालच में आकर के पूरी दाढ़ी शेविंग करा करके हालत कुफ्र में चले गए, गोबर की जिंदगी उन्होंने अख्तियार कर ली है। अफसोस होता है, ये वो मुसलमान है जिन्हें ईमान की हलावत नहीं मिली है। अयोध्या में रहने वाले 2 नौजवान, एक 15 दिन पहले की बात है, एक 30 साल का नौजवान, 32 साल का नौजवान इस्लाम को छोड़ करके माथे पर टीका लगा करके कुफ्र को अख्तियार कर लेता है। क्यों ऐसा हो रहा है? कभी आपने गौर किया है? कभी आपने जायजा लिया है? हालांकि इनके माँ बाप मुसलमान, खानदान मुसलमान और माँ बाप नमाजी, लेकिन ये आज के नौजवान नस्ल, अल्लाह की कसम है, बड़ी तेजी से ये कुफ्र में जा रहे हैं। कभी आपने गौर किया है? वजह ये है, सबब ये है, इनको ईमान की हलावत नहीं मिली है, ईमान की मिठास नहीं मिली है, ईमान का जायका नहीं मिला है, ईमान का मजा नहीं मिला है। ईमान की मिठास मिल जाएगी, जान चली जाएगी, अल्लाह की कसम है ईमान का सौदा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो। बनोगे ऐसे? बनोगे ऐसे? अल्लाह के घर में हो, बिलबिलाना नहीं, हिम्मत के साथ, अज़्म के साथ, हौसले के साथ, अल्लाह पर यकीन के साथ बोलना इंशाअल्लाह तबारक व तआला। जान चली जाएगी, अल्लाह की कसम है, ये दुनिया पैर की ठोकर से मारेंगे, लेकिन हम कभी दुनिया की लालच में आकर के और दौलत की लालच में आकर के अपने ईमान का सौदा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कब होगा जानते हैं? हाँ, ये 3 चीजें अपने अंदर पैदा करो, ये 3 खूबियां आनी चाहिए। और मिसालें अगर मैं देने के लिए खड़ा हूं, ये रात दिन ना काफी है,
मिसालें खत्म नहीं होंगी। सुभान अल्लाह। सहाबे कराम को देखो, कौन है ये असहाबे रसूल जिन्हें कहा जाता है। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को देखो, कैसी आजमाइशें आई, इम्तिहानात आए, इब्तलाएं आई, परेशानियां आई, मुसीबतें आई, सोशल बाइकाट, समाजी बाइकाट, खानदानी बाइकाट। साहबे कराम भूख की वजह से अपने पेट पर पत्थर बांधते थे, लेकिन इतने सब कुछ आने के बावजूद भी उन्होंने कभी अपने ईमान का सौदा नहीं किया। मरते दम तक जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह जारी रहा। सुभान अल्लाह। इसलिए जनाजे की नमाज में हमें ये तालीम दी गई है ना, हम जनाजे की नमाज में सामने जनाजा होता है, हम दुआ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते जानते हैं? अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान। परवरदिगारा, जब तक जिंदगी रखना अल्लाह इस्लाम वाली जिंदगी देना इंशाअल्लाह, और जब मौत आए परवरदिगारा तो हमारा खात्मा ईमान पर हो इंशाअल्लाह ताला। ये जनाजे की नमाज में दुआ पढ़ते हैं, कभी आपने गौर किया है? अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान। इस्लाम वाली जिंदगी अता फरमा और ईमान पर परवरदिगारा खात्मा अता फरमा। प्यारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब को देखो, जिन्हें असहाबे रसूल, सहाबे कराम जिन्हें कहा जाता है ना, इस्लाम लाने के जुर्म में कैसी कैसी ईज़ाएं और तकलीफें और परेशानियां उनको आई हैं। हमने और आपने क्या समझा है? ये इस्लाम हवाओं में आया है, फिजाओं में आया है, झूला झूलते आया है, उड़ करके यहाँ इस्लाम आ गया है, यहाँ तक इस्लाम पहुंचा है। ना जाने कितनी कुर्बानियां दी गई है, माल की कुर्बानियां, वक्त की कुर्बानियां, जान की कुर्बानियां, खानदान की कुर्बानियां, ये उनके जद्दोजहद है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी कुर्बानियों के बदले में इस्लाम हम तक पहुंचाया है। मुसलमानों, इस इस्लाम की हिफाजत करो इंशाअल्लाह, अपने ईमान की हिफाजत करो। मैं एक मिसाल दूंगा और अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा इंशाअल्लाह। एक बड़ा प्यारा नाम है, बहुत अदब से लेने जा रहा हूं, तमाम लोग अदब से नाम लेना इंशाअल्लाह। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु। क्या नाम आता है? हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु। कौन है जानते हैं? कभी इनकी सीरत पढ़िए ना, आपकी आंखें भीग जाएंगी, अपने आप पर आप काबू नहीं रख सकेंगे, आपकी दाढ़ी आंसुओं से भीग जाएगी। बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु, हबशा के रहने वाले, काले कलूटे, होठ मोटे मोटे, चेहरा भद्दा, मक्के में गुलामी की जिंदगी जीने वाले उमैया इब्ने खलफ इनका गुलाम। प्यारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के में दावत तौहीद का आगाज किया, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू तमलिकुल अरब वल अजम, ऐ लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, कामयाब हो जाओगे, अरब भी तुम्हारा होगा, अजम भी तुम्हारा होगा, सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में आ जाएगी अगर तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह को समझ लिया इंशाअल्लाह ताला। इस्लाम कबूल करने वालों में जानते कौन थे? गरीब लोग थे, मजदूर लोग थे, गुलामी की जिंदगी जीने वाले थे, गरीबों का तबका, मुहाजिरिया, इसी तरीके से मजदूर पेशा तबका, ये सबसे आगे था। उन्हीं में एक बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। कान से ये आवाज आई, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस रोए जमीन पर अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं है, सारे बातिल हैं, सारे झूठे हैं, सच्चा माबूद सिर्फ एक है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है। जब प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इस दावत तौहीद का आगाज किया, बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आगे बढ़ करके इस्लाम कबूल किया, मुसलमान हो गए। जानते हैं आप इस्लाम लाने के जुर्म में कैसी सजाएं दी गई? कुरान ने कहा ना, आज पूरी दुनिया अगर तुम्हारी दुश्मन है, तुम्हारी दौलत की वजह से नहीं, तुम्हारी हवेली की वजह से नहीं, तुम्हारे माल की वजह से नहीं, तुम्हारे कुर्सी की वजह से नहीं, आज पूरी दुनिया अगर दुश्मनी पर आमादा है, मुसलमानों तुम्हारे ईमान और तौहीद की वजह से, अल्लाह की कसम है। मैं अला वजहिल बसीरा कुरान करीम की आयत करीमा को पढ़ता हूँ। अल्लाह ने क्या फरमाया? वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनु बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद। पूरी दुनिया वालों ने अगर मुसलमानों से इंतकाम लिया है, जुर्म इस बात पर, गलती ये थी, गुनाह ये था, इन्होंने ऐलान किया इस रूए जमीन पर अगर कोई सच्चा माबूद है पूरी कायनात का, कौन है वो? सिर्फ अल्लाह। क्या बोलो? सिर्फ अल्लाह। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने
इस्लाम कबूल किया। कैसी सजाएं, क्या बताऊं मैं आपको, कैसी ईज़ाएं। मक्का के जो अवबाश गुंडे थे ना, बिलाल हबशी के गले में रस्सी का फंदा डाल करके गलियों में घसीटते थे, गलियों में घसीटते थे। मुशरिकीन को बस नहीं होता था, गरम रेतीली जमीन पर मक्का की चिलचिलाती धूप में लिटा देते थे, ऊपर से भारी पत्थर रख देते थे, हंसी मजाक उड़ाते थे। बिलाल के जुबान से एक ही नारा और एक ही जुमला निकलता था, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, सिर्फ एक है। फिर एक बार बोलता हो, सिर्फ एक है, और एक बार बोलता हो, सिर्फ एक है। वही मुश्किल कुशा, वही हाजत रवा, वही फरियाद रस, वही गौसे आजम, वही दस्तगीर, वही गंज बख्श, वही दाता, वही रोजी रोटी का मालिक, वही मौत हयात का मालिक। अल्लाह की कसम है, वमा तशाऊन इल्ला यशाअल्लाह। कितनी कुरान की आयत है जुबान पर आ रही है और मैं आपके सामने क्या बात करूं, वही सब कुछ अल्लाह की कसम है। बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु यही कहते थे, ईज़ाएं दी जाती थे। एक मुशरिक ने आकर के कहा बिलाल, तुम तो कहते थे तुम्हारा परवरदिगार 7वें आसमान पर है, मदद के लिए आएगा, क्यों नहीं आ रहा है? आज ये दुनिया के कुफार हमें ताना देते हैं और हमसे भी यही जुमला कहते हैं कि है तुम्हारा खालिक, तुम्हारा मालिक, तो मदद के लिए आना चाहिए ना। बिलाल हबशी ने क्या कहा, नादानो, तुम्हें खबर नहीं है, तुम्हें पता नहीं है, अगर दुनिया में कपड़ा खरीदने के लिए जाते हो ना, टटोल करके देखते हो, ये कॉटन है, ये सिल्क है, ये पॉलिस्टर है, मिट्टी का घड़ा खरीदने के लिए जाते हो, ठोक बजा करके देखते हो, ये कच्चा है या पक्का है। ईंट खरीदने के लिए जाते हो, ठोक बजा करके देखते हो, ये कच्चा है या पक्का है। मेरा परवरदिगार ईमान के बदले में, कलमे के बदले में, तौहीद के बदले में जन्नत देने वाला है। यूं ही अल्लाह जन्नत दे देगा। अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला यफ्तनून। और इकबाल के जुबान में कहूं, जुबान से कह दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, जुबान से कह दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो नजर मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। कहते थे अल्लाह तबारक व तआला ये हमारा इम्तिहान ले रहा है, आजमाइश और इम्तिहान में अल्लाह तबारक व तआला हमें डाल रहा है। अलगर्ज कहना यह है मेरे भाइयों, पैगाम मैं ये देना चाहता हूँ, बातें तवील हो जाएंगी मेरे भाइयों। बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला को ऐसे ही इज़ाएं दी जा रही है इस्लाम लाने के जुर्म में, कलमे तौहीद को अख्तियार करने के जुर्म में। बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अपने ईमान पर और अपने इस्तिकामत और इस्लाम पर डटे हुए हैं। एक वक्त ऐसा आया, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, ईज़ाएं दी जा रही हैं, सजाएं दी जा रही हैं। सिद्दीक़ अकबर का वहां से गुजर होता है। उन्होंने कहा, उमैया इब्ने खलफ, शर्म नहीं आती है, एक ऐसे इंसान को क्यों मार रहा है, क्यों सजाएं दे रहा है, क्या बिलाल की गलती क्या है, खता क्या है? उस उमैया इब्ने खलफ ने कहा, अगर तुम्हें ज्यादा ही बिलाल से मोहब्बत है तो ले जाओ, मैं बेचने के लिए तैयार हूं। कहा, कितने में बेचोगे? उस जालिम ने कहा, 200 दिरहम चांदी के सिक्के, 200 दिरहम चांदी के सिक्के मैं बेचने के लिए तैयार हूं। अल्लाह की कसम है। सिद्दीक़ अकबर फौरन घर पे गए, 200 दिरहम चांदी का सिक्का लाए, उमैया इब्ने खलफ की गोद में डाल दिया और बिलाल हबशी को आजाद करा के चलने लगे, ले जाने लगे ना। तो उमैया इब्ने खलफ ने कहा, अबू बकर, मैं ये समझता था मक्के में तुमसे बड़ा अक्लमंद कोई नहीं है, 200 दिरहम में तुमने खरीदा है बिलाल को, क्या करोगे ले जा करके? इस बिलाल की क्या कदर कीमत है? कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, पढ़ा लिखा है, क्या करोगे ले जा करके? सिद्दीक़ अकबर ने जो जवाब दिया, तमाम मुसलमानों की जानिब से जवाब है। उन्होंने कहा, उमैया इब्ने खलफ, तुझे क्या खबर है इस बिलाल की कदर कीमत क्या है? तू 200 दिरहम चांदी के सिक्के की बात करता है, यमन की सल्तनत के बराबर भी अगर पैसा लगा देता सिद्दीक़ अकबर उतनी कीमत दे करके बिलाल को आजाद कराता था। तुझे क्या पता है बिलाल की कदर कीमत क्या है? बिलाल चलता है जमीन पर, आसमान में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इनके कदमों की आवाज सुनाई देती है। सुभान अल्लाह। कौन है बिलाल? मेराज के मौके पर अल्लाह के नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जब आप आसमान में गए, आपने जन्नत की सैर की ना, जिब्रील अमीन के साथ आप जा रहे हैं, आपके आगे जूतों की आवाज आ रही है, जैसे कोई आपके आगे चल रहा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिब्रील अमीन से पूछा, जिब्रील ये किसकी आवाज है?
किसके चलने की आवाज आ रही है? जिब्रील अमीन ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपको खबर नहीं है, ये आपके गुलाम मस्जिद नबवी के मुअज्जिन, ये बिलाल के जो है मुअज्जिन रसूल, आपके खादिम। उस टाइम में मक्का मेराज अभी मदीना से पहले हुआ ना, तो कहा कि आपके खास गुलाम बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जूतों की आवाज सुनाई दे रही है। प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से आप वापस आए, सारे सहाबा को आपने जमा किया और जमा करने के बाद आपने पूछा, बिलाल कहाँ है? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, आपके सामने हूँ। आपने कहा, बिलाल एक बात बताओ, तुम कौन सा काम करते हो दुनिया में? मैंने जन्नत की सैर की है, मैं जन्नत में जहां जहां गया मेरे आगे तुम्हारे जूतों की आवाज सुनाई दे रही है, मेरे आगे तुम्हारे कदमों की चाप सुनाई दे रही है, क्या काम करते हो? बिलाल हबशी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं कोई नया काम नहीं करता हूँ, आपने जो कहा मैं वही करता हूँ, हमारी भी यही दावत है, यही पैगाम है। मुसलमानों, कामयाबी के दो उसूल हैं, एक अल्लाह का कुरान है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का पैगाम है सल्लल्लाहु। इसमें कोई गलत बात है आपको? साफ सीधी बात है, आईने की तरह साफ और शफाफ है। कहा, या रसूल अल्लाह, मैं बस कुरान हदीस पर अमल करता हूँ, आपने जो बातें बताई है ना उसी पर अमल करता हूँ। हाँ, एक चीज है, शायद अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम दिया हो। नबी ने कहा, क्या है? करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। कहा, एक चीज है जिस पर मैं बड़ी पाबंदी से अमल करता हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा, क्या है बिलाल? कहा, या रसूल अल्लाह, जब कभी मेरा वुजू टूट जाता है ना, फौरन मैं वुजू बना लेता हूँ, हमेशा बावुजू रहता हूँ, और जब जब वुजू बनाता हूँ वुजू की बरकत से 2 रकात नमाज पढ़ लेता हूँ। नबी ने कहा, बिलाल, दुनिया वाले इस अमल को मामूली समझ रहे हैं, अल्लाह ने इस अमल के बदले में तुझे जन्नत में दाखिल कर दिया। सुभान अल्लाह। आज का मुसलमान जुमा में साफ हुआ तो आइंदा जुमा ही पाक साफ रहेगा। मगरिब में अगर नाराज ना हो, अल्लाह बताता हूँ, मैं आपका एक छोटा भाई हूँ या आपका साथी हूँ, कुछ भी आप समझ ले, अगर मगरिब में कह दिया जाए कि नमाज पढ़ने के लिए चलेंगे तो जुमा के दिन ये मगरिब में नापाक हो जाते हैं। जुमा जुमा ये गुस्ल करने वाला मुसलमान, जुमा जुमा ये पाक साफ होने वाला मुसलमान, कैसे अल्लाह की रहमत आएगी, कैसे अल्लाह की बरकत आएगी, कैसे अल्लाह की मदद आएगी, कैसे दुनिया में इज्जत अल्लाह तबारक व तआला देगा। 3 चीजें हैं। वक्त मेरा खत्म हो रहा है, कुछ मिनट और बाकी बचे हैं, और ऐसे मैंने कहा ना, एक नहीं सैकड़ों मिसालें मौजूद है। खब्बाब इब्न अरत एक नाम आता है, सहाबी रसूल है, जानते खब्बाब। और सुनिए ना, बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह, बात तो मुकम्मल ही नहीं है। हाँ, बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह के नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बिलाल पता है कल क़यामत के रोज सारे मुअज्जिनों के सरदार होगे तुम इंशाअल्लाह। सारे मुअज्जिनीन जो अज़ान देने वाले हैं सब बिलाल के पीछे होंगे, बिलाल सबसे आगे होंगे, और अल्लाह ताला है बिलाल तुम्हारी गर्दन ऊंची कर देगा इंशाअल्लाह। हर आदमी को तुम्हारी ये ऊंची गर्दन नजर आएगी। अज़ान देने की बरकत में सारे मुअज्जिनों में बिलाल पहले जन्नत में जाएंगे, उनके पीछे सारे मुअज्जिन जाएंगे इंशाअल्लाह। बोलो, क्या समझा है आपने? ये शर्फ जिसको मिल गया अजान देने का, ये मकाम जिसे मिल गया इकामत बोलने का, ये अजमत जिसे मिल गई मुसल्ले पे खड़ा होने का। जानते हैं बिलाल हबशी बड़ी खिदमत करते थे प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बिलाल हबशी को सताने वाले सारे मर गए, सारे खत्म हो गए, सब जलील हो गए। अल्लाह ने ग़ज़वे बदर में सबको मार डाला, कोई नहीं बाकी बचा। बिलाल हबशी को अल्लाह ने इतनी बड़ी इज्जत दी, मक्का फतह हुआ, दोपहर का वक्त, जोहर का वक्त था। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, बिलाल कहाँ हो, जाओ मक्के की छत पे खड़े होकर के तौहीद की सदा बुलंद करो। मैं अपने इल्म की हद तक ये बात कहता हूँ, मक्के की छत पे खड़े होकर के अज़ान देने का शर्फ अगर किसी को हासिल हुआ वो बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु है। दुआ करें, उनके हम पर बड़े एहसानात हैं।
है, अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल फरमाए। और मुसलमानों, मैंने कहा ना, बड़ी तवील है ये दास्तान, बहुत बड़ा है ये मौजू। वो 3 बातों तक मैं पहुंचा नहीं हूँ, शायद पहुंच पाऊं या ना पहुंच पाऊं। आइए बात मैं अपनी खत्म करूं और मैं अपनी बात समेटूं, लेकिन जल्दी से लेकर के जाइए इंशाअल्लाह। और 3 बातें ले जाएंगे इंशाअल्लाह, या खुतबा खत्म करूं? 3 बातें हैं, बड़ी जल्दी में कह दूंगा इंशाअल्लाह और बात मेरी खत्म करूंगा। चलिए, आप अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? सलातुम मन कुन्ना फी वजदा बिहिन्ना हलावतल ईमान। जिसने 3 खूबियां अपने अंदर पैदा कर ली, उसे ईमान की हलावत, ईमान का जायका, ईमान की लज्जत मिलेगी। सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ेगा अच्छा लगेगा, कुरान पढ़ेगा अच्छा लगेगा, 100 रुपया सदका दिया, 10 रुपया किसी को दिया, अल्लाह की कसम है कलेजा ठंडा हो जाएगा और दिल से बोलता है आज मैंने अच्छा काम किया है। वल्लाह बताता हूँ, कभी 10 रुपया आप खुलूस से दिल से किसी की मदद करो, कलेजा ठंडा हो जाता है, वाकई में आज मैंने एक अच्छा काम किया है। 3 खूबियां पैदा कर लेंगे ना, ईमान की हलावत मिलेगी। सबसे पहली बात, उंगलियों पर गिने, और सब नहीं बताऊंगा, अधूरा छोड़ करके जाऊंगा, कभी फिर आप किसी और इमाम की जुबानी सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहली बात, अल्लाह के हबीब ने क्या फरमाया? अय्यकून अल्लाहु व रसूलुहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहा। ईमान की हलावत और मिठास कब मिली जानते हैं? सबसे पहली चीज मेरे और आपके अंदर हो, इस रूए जमीन पर सबसे ज्यादा हमारी जो मोहब्बत हो, किससे हो? माल से हो। किससे? हाँ, पैसे से हो। हाँ, इस रूए जमीन पर सबसे ज्यादा हमारी अगर किसी से मोहब्बत हो, वो अल्लाह से हो। किससे हो? अल्लाह से हो। वही हमारा खालिक, वही हमारा मालिक है, वही हमारा राज़िक है। अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा तो हम दुनिया में आए। उबैदुल्लाह को कौन पहचानता था? अब्दुल रज़्ज़ाक को कौन पहचानता था? अब्दुल रहमान को कौन पहचानता था? अब्दुल रहीम को कौन पहचानता था? अल्लाह ने पहचान कराया है, अल्लाह ने दुनिया में भेजा। अल्लाह ताला इंसान लम यकुन शैय्यन मज़कूरा। ऐ इंसान, तेरी औकात क्या है? तेरी हैसियत क्या है? तू एक हकीर पानी से पैदा हुआ है, तेरी कोई अल्लाह के तबारक व तआला के सामने कोई अहमियत नहीं। अल्लाह ने वजूद में लाया है, तब हम दुनिया में आए। इसलिए सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे हो? हमारा खालिक है, हमारा मालिक है। वमा बिकुम मिन नेमतिन फमिन अल्लाह। आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है, सरमाया है, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, सवारी है, दौलत है, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, किसने दिया है? ये जब चाहे ले ले, अल्लाह की कसम खा करके बोलता हूं, जब चाहे छीन ले, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। याद रखो। हमारे 1-2 साथी मौजूद हैं, जब 15 साल पहले यहां पर मैं था, आज याद आ गई वो बात हो, हमारे अपने जमात से जुड़े वो, और उनका बच्चा इंतकाल कर गया। दुआ की उन्होंने इसी मस्जिद में बैठ करके, आइंदा साल अल्लाह ने उनको जुड़वा बच्चे दिए। सुभान अल्लाह। कितने दिए? 1 लिया, अल्लाह ने 2 दिए। सुभान अल्लाह। सफर से पहले 2 दिन पहले यादगिरी में हमारे अब्दुल मतीन भाई, 10 साल का उनका बच्चा घर में बैठा हुआ है, दोस्त बुलाने के लिए आया, चलो चल करके पानी में कुछ स्विमिंग पूल तैर करके आए। क्या खबर थी, ये वहां जा रहा है, मौत उसको लेकर के जा रही है। 10 साल का बच्चा, 9वीं 8वीं क्लास में, अरबी जमात में पढ़ने वाला, दोस्त लेकर के आया, घर से लेकर के गया, 15 किलोमीटर दूर मौत उसको लेके गई। कुरान ने कहा ना, कुल इन्नल मौत अल्लती तफिर्रून मिन फइन्नहु मुलाक़ीकुम। तुम मौत से मिलो या ना मिलो, मौत तुमसे मिल करके रहेगी। सच है ये, तुम मिलो या ना मिलो। 15 किलोमीटर दूर दोनों दोस्त गए और एक खेत में, एक 10-11 गहरा फीट का, 11-12 जो है गहरा फीट, एक जो है एक तालाब गढ़ा था खेत में, किसान ने खोद करके रखा था। दोनों तैरने के लिए गए थे, गाड़ी पर हंसते खेलते गए थे। एक 10 मिनट के अंदर दोनों की बॉडी आ गई। पूरी दुनिया नहीं रोक सकती, याद रखो। 18 मैं ये याद पड़ता है, बात में अपनी खत्म कर रहा हूं। एक
कोविड-19 के दौरान में चेन्नई का रहने वाला एक बहुत बड़ा डॉक्टर, ये आखिरी बात है, ये वक्त नहीं लूंगा इंशाल्लाह, बातें रह गई हैं, किसी और मौके पर इंशाल्लाह। घड़ी ने भी इशारा कर दिया मौलाना बंद कीजिए, अब तो बंद करूंगा इंशाल्लाह, वक्त बस ये आखिरी बात। कोविड-19 में चेन्नई का रहने वाला डॉक्टर, गैर मुस्लिम डॉक्टर, बहुत बड़ा दवाखाना आज भी मौजूद है, 100 स्टाफ उसके पास काम करने वाले, 18 साल की बेटी, रिश्ता तय हो गया था, मंगनी हो गई थी और उस कोविड-19 का शिकार हो गई, बच्ची बीमार हुई। डॉक्टर को अपने इल्म पर गुरूर, ताकत पर गुरूर, दवाइयों पर गुरूर था, 100 स्टाफ है, बच्ची को बचा लेंगे, अकेली बच्ची, 100 स्टाफ मिलकर के बच्ची को बचा ना सके और बच्ची कोविड-19 में इंतकाल करके, जानते हैं आगे की बात सुनिए, जानते हैं बच्ची के इंतकाल के बाद उस डॉक्टर ने मीडिया के सामने आकर के गैर महसूस अंदाज में कहा, मैं गैर मुस्लिम था, मैं आज तक ये समझता था कि हमारे पास इल्म है, ताकत है, दौलत है, 100 का स्टाफ है, जिसे चाहे बचा ले, जिसे चाहे जिंदगी दे। आज पता चला है 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, पूरी दुनिया मिल जाए अगर किसी को बचाने में, और अल्लाह का लेने पर आ जाए, रब्बे जुल जलाल की कसम है, सलफियों का मेंबर है, सब बचाने के लिए आ जाएंगे। अल्लाह अगर चाहे तो कोई बचा नहीं सकता है, सच है या गलत है? कुरान ने कहा कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रूना मिन फइन्नहु मुलाक़ीकुम, मौत तुमसे मुलाकात करके रहेगी। इस रूए जमीन पर सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे हो? अल्लाह से हो। सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है, जब चाहे मुझे बुला ले, आपको बुला ले, कोई रोक सकता है ताकत और कुव्वत किसी के पास? शायर ने कहा ना, वतज़व्वदू मिन तक़वा फ़इन्नका ला तदरी इज़ा जन्ना लैलुन हल तईशु इलल फज्र। तोशा बना लो, तोशा तैयार करो, तोशा। सामान्य सफर, दुनिया में कई सफर पे जाते हो ना, पासपोर्ट है, वीजा है और आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, ना जाने क्या क्या सब जमा करके, खाना बना करके, तैयारी करके सफर पे जाते हो। आखिरत का भी सफर है, कोई तैयारी की आपने? दुनिया का सफर ये रेलवे पर, रेल के जरिए से, जहाज के जरिए से, गाड़ियों के जरिए से होता है। आखिरत का ये सफर कंधों पर होगा, 4 आदमी उठाएंगे, कितने? और कोई महल में लेकर के नहीं जाएंगे, शहरे हरिहर के करीब में, शहरे खामोशा कब्रिस्तान, वहां ले जाकर के 9 मन मट्टी के नीचे दफन कर देंगे। शायर ने कहा वतज़व्वदू मिन तक़वा फ़इन्नका ला तदरी, तोशा जमा कर लो, ये नमाजों का, ये रोजे का, ये सदक़े का, ये खैरात का, ये तिलावत कुरान का, ये सलाम का, ये प्यार का, ये मोहब्बत का, ये तोशा जमा लो। नहीं जानते हो रात की तारीकी जब आएगी, फजर तक कौन जिंदा रहेगा? कोई नहीं जानता है। वकम मिन सकीमिन, शायर कहता है हीना आशो मिन दहरी वकम मिन सहीहिन माता मिन गैरिल्ली, कितने तंदुरुस्त नौजवान चले गए, कोई बीमारी नहीं थी, और कितने बीमार हैं, बिस्तरों पर पड़े हैं, उन्हें मौत नहीं आ रही है। अल्लाह से दुआ फरमाए। पहली बात मैंने कही है, इस रूए जमीन पर सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे हो? और अल्लाह के बाद एक जुमले में बात कहता हूं, अल्लाह के बाद इस रूए जमीन पर सबसे ज्यादा मोहब्बत प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी का हम पर इतना एहसान है, मर करके मट्टी में मिल जाओगे, अपने नबी के एहसान का बदला नहीं चुका सकते हो। सबको सल्लल्लाहु, हमारे नबी ने हमको हमारे माँ बाप से ज्यादा चाहा है, प्यार किया है, फिक्र की है, दुनिया में भी फिक्र की है। कल क़यामत के रोज सब कहेंगे नफ्सी नफ्सी नफ्सी, मेरे नबी कहेंगे उम्मती उम्मती उम्मती। अल्लाह से दुआ फरमाए मुझ कहने वाले के लिए, हम सभी सुनने वालों को अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सब की खताओं को माफ़ फरमा, हम सब की आमाल सालिहा को कबूल फरमा। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम व करम नाज़िल फरमा। हम सब की अल्लाह तबारक व तआला जो जायज़ ज़रूरियात है अल्लाह उसे पूरी फरमा। जो कर्ज में डूबे हैं अल्लाह उन्हें कर्ज से निकलने का कोई ना कोई रास्ता पैदा फरमा। सबको अल्लाह अपने फजल से माला माल फरमा। गरीबों की अल्लाह गरीबी दूर फरमा, बखीलों की अल्लाह बखीली दूर फरमा। अल्लाह सबको अल्लाह दुनिया में इज्जत और अमन और आफियत अल्लाह नसीब फरमा। दुनिया के जिस इलाके में, जिस खित्ते में रहने वाले, बसने वाले कोई भी मुसलमान हो अल्लाह तो उनकी मदद करने वाला बन जा, अल्लाह उनका हामी और नासिर बन जा। अल्लाह जालिमों को अल्लाह हिदायत नसीब फरमा। आमीन बोलिए।
اور اللہ اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں ہے، اللہ بری موت نصیب فرما، اللہ مظلوموں کی مدد فرما، اس ملک میں، یہاں کی وادیوں میں، یہاں کی فضاؤں میں، یہاں کے گھاٹیوں میں اللہ امن و عافیت نازل فرما، سب کو پیار سے محبت سے مل جل کر کے رہنے کی اللہ توفیق نصیب فرما۔ اور وقت زیادہ نہیں، آخری دعا یہ کر لیں، پاک پروردگارہ ہم جیسے یہاں بیٹھے ہیں ہم سبھی لوگوں کو اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، آمین رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔